तो आज स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन चैप्टर। बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है ये पॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। पहले जानते हैं वेस्ट क्या होता है। वेस्ट इज एनी अनवांटेड और अनडिजायर्ड मटेरियल or substance resulting from industrial, agricultural, commercial, mining and from community activities. ये एनी अनवांटेड अनडिजायर्ड मटेरियल है रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कमर्शियल माइनिंग एंड फ्रॉम कम्युनिटी एक्टिविटीज़. With the rise in population, waste is also increasing. It's becoming unmanageable. Open dump and heap of wastes is a common sight now. Open dump, HOW, heaps of garbage, heaps of garbage. Open dump is a common sight. This unhygienic atmosphere leads to problem related to human health and environment because untreated waste is a breeding ground for flies, for flies, for rats, for rats and other insects which spread various diseases. It's a breeding ground. It's a breeding ground for these insects. What? Open dumps and heaps of garbage. This unhygienic atmosphere leads to problems related to human health and environment because untreated waste causes these things. Untreated waste is a breeding ground for these things, flies, rats and insects, which cause diseases. The rainwater which passes through those sites contaminates the environment. Wastes can be classified into two: biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable wastes are those substances which can be broken down by microorganisms harmless and non-toxic substances. These include animal and agriculture waste, like for example dung, leaves, kitchen 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 left and overs. They can be broken down by microorganisms into harmless and non-toxic substances. Now, what about non-biodegradable waste? Non-biodegradable waste are those substances that cannot be broken down by microorganisms. These include plastic. These include styrofoam, plastic, styrofoam, and cans, glass, electronic waste, e-waste, and etc. Accumulation of a large amount of these waste results in pollution. So accumulation of this type of waste is called pollution. Now let us define pollution. What is pollution? Pollution is the addition of any constituent to air, water or land which deteriorate the natural quality of the environment. And pollutant is any constituent which causes pollution. Again, what is pollution? Pollution is the addition of any such constituent to air, water or land which deteriorates the natural क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को जो डिटोरेट करता है उस कंस्टिट्यूएंट के एडिशन को बोला जाता है पोल्यूशन. और वो कंस्टिट्यूएंट को बोला जाता है पॉल्यूटेंट. पॉल्यूशन होता है 5 टाइप्स का: एयर, लैंड और वाटर. लैंड मीन्स सॉइल, 3 पता है, और 2 होता है: नॉइज होता है और एक रेडिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट एयर. एयर पॉल्यूशन होता है 2 टाइप्स का. एक होता है गैशियस और एक होता है पर्टिकुलेट. पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है. एयर पॉल्यूशन का मीनिंग. एयर पॉल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ द एयर क्वालिटी विच harmfully affects the living organisms as well as certain objects. Air pollution is the degradation of the quality of air which harmfully affects the
living organisms as well as certain objects. Again, air pollution is the degradation of the quality of air which harmfully affects the living organisms as well as certain objects. टू टाइप्स के होते हैं, गैसेस और पार्टिकुलेट. अब बात करते हैं सोर्सेज. इसके टोटल आप बोल सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन दो होते हैं. एक होता है नेचुरल एयर पोल्यूशन, दूसरा होता है मैन मेड. अब बात आती है नेचुरल कैसे होता है. मैन मेड का तो शायद सबको पता होगा. नेचुरल का कैसे होता है. ऐश फ्रॉम बर्निंग वॉल्केनोज. जब वॉल्केनोज बर्न होता है तो उनमें से ऐशेज निकलते हैं. ठीक है, ऐशेज जो निकलते हैं, राख, वही एयर पोल्यूशन करता है. डस्ट, स्टॉर्म्स जो होते हैं उनमें से जो डस्ट प्रोड्यूस होता है वो कॉज करता है पोल्यूशन. और फॉरेस्ट में लगने वाला आग रुकता नहीं है जल्दी, ये करता है नेचुरल सोर्सेज. दिस पॉल्यूटेंट्स आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एंड विल कंटिन्यू टू ऑकर. ये तो होंगे ही. क्या पहला वोल्केनोज से बर्न होने वाला एशेज, देन डस्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर्स. वोल्केनो, डस्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर्स. सो मैन मेड को ओवरऑल 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. पहला व्हीकल से, दूसरा इंडस्ट्री से, तीसरा गार्बेज, चौथा ब्रिक. क्या व्हीकल, इंडस्ट्री, गार्बेज, ब्रिक, इसको अच्छे से याद रखो. चारों का हम लोग बात करेंगे कैसे होता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो ट्राई करेंगे हम लोग जानने का. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ व्हीकल्स. क्या बहुत टाइप की गाड़ियाँ होती हैं. मोटर कार, ट्रक, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेलवे, इंजन. वो ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं. अब ये पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं, गैसियस पॉल्यूटेंट देते हैं. मेनली 3 गैसियस पॉल्यूटेंट. क्या, CO2, SO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. CO2, SO2 एंड CO. Simultaneously, there is the wearing of rubber tires of automobiles, releasing rubber particles, and furthermore the speeding vehicles also raise the road dust particles into the air. You must have also experienced a lot of dust raised when the road cleaners sweep the road every morning. क्या क्या चीज़ जाने. पेट्रोल डीजल पे गाड़ी चलता है, पहली बार पेट्रोल डीजल पे गाड़ी चलता है, CO2, SO2, CO निकलता है, रबर घिसता है, रबर पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और जो गाड़ी चलता है उसका डस्ट उड़ता है, और जो झाड़ू लगाते हैं सुबह धूली उड़ता है. ठीक है, अब इसको कंट्रोल कैसे करें. तो भैया पेट्रोल डीजल को छोड़ के तुम यूज़ करो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ग्रेटर यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और क्या करो, तुम इंजन को एफिशिएंट रखवाओ. तुम क्या करो, गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल फ्यूल्स यूज़ करो. फ्यूल्स का क्वालिटी चेक करो, अच्छा क्वालिटी का लिया करो. ठीक है, और लीड फ्री पेट्रोल अगर डालते हो तो लीड मत डालो. लीड नहीं होना चाहिए पेट्रोल में. अगर अभी तुमको हवलदार बना के छोड़ दे, जाओ तुम एयर पोल्यूशन कंट्रोल करो, तुम क्या करोगे. पहले बताओगे तुम CNG यूज़ करो सब लोग मिलके. फिर तुम बताओगे इंजन चेक करोगे सबका, पेट्रोल अच्छे क्वालिटी का, फ्यूल अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, पेट्रोल लीड फ्री है कि नहीं. पेट्रोल डाला है तो लीड फ्री होना चाहिए, फ्यूल डाला है तो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए. वैसे तो CNG डालो. इंजन चेक करोगे, इंजन में कुछ झूठ तो नहीं हो रहा है. इंजन चेक करो, एफिशिएंट इंजन होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑयल होना चाहिए. पेट्रोल लीड फ्री होना चाहिए, CNG यूज़ करना चाहिए. अब इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन. The whole world is undergoing extensive industrial evolution. It ranges from small scale pottery to weaving units to huge sugar factories, cloth factories, metal factories, automobile manufacturing units, drug manufacturers, oil refineries, and so on. They give out all kind of pollutants. The chief industrial gaseous pollutants again constitute CO2, SO2, and CO, and also oxides of nitrogen. ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे. The smoke released by factory chimney into the air contains a lot of particulate pollutants. जो स्मोक निकलता है उसमें क्या होता है, particulate pollutants होते हैं.
ठीक है। स्टोन ड्रिलिंग एंड माइनिंग प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल्स विच पोज सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स टू द रिवर लेबर्स इन्वॉल्व। जो स्टोन ड्रिलिंग होता है, स्टोन ड्रिलिंग होता है आपका, और क्या होता है, माइनिंग होता है, माइनिंग, ये सब के टाइम पे क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स करते हैं। फिर से चेक करते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। पहला 3 गैसेज रिलीज होते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकलता है, फिर फैक्ट्री स्मोक निकलता है, उसमें पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और इंडस्ट्री में और क्या इंक्लूडेड है, स्टोन ड्रिलिंग और माइनिंग ऑफ कोल मेटल्स एक्सेट्रा। ये फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है लेबर्स को। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक स्मॉग, एक चीज़ होता है। स्मॉग क्या होता है? द स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मे गेट मिक्सड विद डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग टू प्रोड्यूस what is called smog. The smoke released from various sources may get mixed with dust particles and small drops of fog. Small drops of fog, dust particle and smoke to form smog. Smog is harmful to plants and if inhaled may cause asthma and allergies in human. अस्थमा होता है किससे? स्मॉग से। ठीक है। अब थर्ड है गार्बेज। गार्बेज में क्या होता है, हम लोग का गार्बेज क्या होता है, वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ड्राई फ्रूट्स के छिलके, पल्सेस को धोने के बाद के छिलके, राइस के छिलके। हम क्या करते हैं, इन वेस्ट को आइदर कंपोस्ट कर देते हैं या फिर बर्न कर देते हैं। कंपोस्ट तो चलो अच्छा है, लेकिन बर्न करने से क्या होता है, हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, CO2 और भी बाकी गैसेज, हार्मफुल गैसेज। और क्या होता है, स्मोक निकलता है जो कि ऐड करता है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ठीक है। लास्ट है ब्रिक किल्न्स। इसको हिंदी में बोलते हैं ईंटों के भट्टे, ईंटों के भट्टे। द ब्रिक किल्न्स आर फायर हीटेड एनक्लोजर्स फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स। फायर हीटेड एनक्लोजर्स, ये एक एनक्लोज जगह है, यहाँ पे फायर हीट होता है अंदर। फायर हीटेड एनक्लोजर्स फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स। Raw moist clay bricks are arranged in heaps with firewood in between and then covered by layer of some special mud mixture to contain the burning flames inside. This setup is left for a few days. The smoke collecting inside the released through a hole, and on opening the original mud colored bricks are found to be red and there is a huge quantity of ash. The wastes produced a large quantity of ash and broken brick bits. These are all pollutants which are either somehow reused or just dumped. Lots of smoke and heat given out are the pollutants. आप समझो ब्रिक किन, ईंटों के भट्टे होते क्या हैं, ईंटों के भट्टे होते क्या हैं। ये क्या होता है, फायर हीटेड एनक्लोजर्स होते हैं ताकि ब्रिक्स बन सके। ये क्या होता है, पहला होता है रॉ मॉइस्ट क्ले, कच्चा गीला क्ले ब्रिक्स। इनको हिप्स में लगाया जाता है, हिप्स में लगाया जाता है विथ फायरवुड इन बिटवीन एंड देन कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ मड मिक्सचर टू कंटेन द बर्निंग फ्लेम्स इनसाइड। पहला तो हिप्स में लगा दो मॉइस्ट रॉ क्ले ब्रिक्स को, फिर आप उसके बीच में फायरवुड डाल दो, उसको कवर कर दो विथ मड मिक्सचर टू, किस लिए कवर कर दो, टू कंटेन द बर्निंग फ्लेम इनसाइड। ऑन दिस सेटअप इज लेफ्ट फॉर अ फ्यू डेज। स्मोक जो अंदर भर्ती हो रहा है ये एक होल से निकलता है, जब आप उसको खोल दोगे पूरा तो ओरिजिनल मड कलर जो ब्रिक्स था वो रेड हो जाएंगे और अंदर बहुत सारा ऐश होगा, ऐश। और जो वेस्ट है वो लार्ज क्वांटिटीज में होंगे जो कि होगा ऐश और ब्रोकन ब्रिक बिट्स। These are all pollutants which are either somehow used or dumped. Lots of smoke and heat given out are the pollutants. Thank you.